Hello friends, hello viewers, and welcome in this IT channel. This is Vikas. I'm working as a technical trainer at Brelica Services. So in this video, basically, we are just going to discuss about data science. So it is the most popular, most prominent field of technology you can say nowadays. So there are many types of tools and technologies that can be used in data science. So in this lecture, we are just going to discuss all the things related to data science or data analytics, you can say. So the flow of this workshop or video, you can say, mm, will be, we will be discussing about what is data science. Before that, we will discuss what is data and how a data becomes as a big data and how big data industry is related to data science, you can say. So about machine learning, AI, and life cycle of data science projects and roadmap for the data scientist, and also why Python is more important in data science and how you can say what are the languages that can be used in data science in the comparison, or you can say in the competition of the Python. So we will discuss all the things. First of all, if we talk about intelligence, if we talk about artificial intelligence, we need to start from the data, from the basic, from the zero. At the beginner level, you have to understand, first of all, about data, that what is data. Just because of everything is depend on data. How? You can say, if you talk about the website, a website is also dealing with the data in different manner, in different time. If we talk about the software, if we talk about the database, and if you're talking about any type of software, in IT sector, each and everything, every software, every website, every database, technologies, all the things are dealing with the data in the different manner, in the different way. So you can say everything is dependent on data. Everything comes from the data and everything converts as an intelligible form of data. So we are actually using data in different type of manner, in different ways. We are, you can say, recording data or analyzing the data for some outcome, for some information, for some results. So first of all, we need to understand that what is data. We need a clear understanding about data. Just because we can say everything is dependent on data. So data is something that is more important. Like इन योर पर्सनल लाइफ यू हैव टू टेक एनी डिसीजन. अगर आपको अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ डिसीजन लेना है तो ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रॉब्लम आपको डेटा कलेक्ट करना होता है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है इन विच यू जस्ट वांट टू टेक अ डिसीजन. तो आपका जो प्रॉब्लम है उसके कॉन्टेक्स्ट में जो भी डेटा रेलेवेंट है यू हैव टू कलेक्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल आप वो सारा डेटा कलेक्ट करते हो एंड आफ्टर द कलेक्शन यू हैव टू स्टडी. आपको वो डेटा स्टडी करना है. डेटा स्टडी करोगे तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में इस डेटा का फ्लो क्या है और ये डेटा का इनसाइट्स क्या है, पैटर्न्स क्या है. बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो हिडन होती है, तो उन्हें हमें समझना होता है डेटा कि एक्चुअल में जो हमारे सामने डेटा रखा जाता है, रॉ डेटा आप कह सकते हो उसे, उस डेटा को देख करके बहुत इजीली हम नहीं कह सकते हैं कि एक्चुअल में डेटा का फ्लो कैसा है एंड इसके हिडन पैटर्न्स क्या है, हिडन फैक्ट्स क्या है, इनसाइट्स क्या है. सो आपको एनालाइज करना होता है उस डेटा को. एनालिसिस का एक प्रोसेस है. तो अब देखिए एनालिसिस आप दो तरीके से कर सकते हो. एक तो ये है कि एक ह्यूमन बीइंग उसको प्रोसेस करे, जस्ट लाइक वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स. तो हम लोग डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं बाय यूजिंग आवर ब्रेन. हमारी ब्रेन की अपनी एक फंक्शनैलिटी है, तो उसके बेस पे डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं. अब इस डेटा को प्रोसेस करने के लिए हमें पहले उसे कलेक्ट करना होता है. तो हम कलेक्शन करते हैं सुन करके या रीड करके, देख करके, अलग अलग तरह का डेटा कलेक्ट करते हैं, फिर उसको प्रोसेस करते हैं एंड फाइनली हम किसी डिसीजन पे पहुंचते हैं. बट अगर आपके पास डेटा ज्यादा है, मॉडरेट लेवल का है, इतना डेटा है कि आपका ब्रेन उसे स्टोर नहीं कर सकता एक साथ और आप उसको प्रोसेस नहीं कर सकते क्योंकि हमारी आपकी लिमिटेशन है. ऑल्दो हमारा ब्रेन बहुत पावरफुल है, आप जानते होंगे कि ब्रेन हमारा बहुत पावरफुल है. मतलब कि इतना पावरफुल पूरे वर्ल्ड में, पूरे यूनिवर्स में कोई भी चीज नहीं है जितना कि हमारा ब्रेन पावरफुल है. बट प्रॉब्लम इज कि हम उतना एफिशिएंटली इस ब्रेन को यूज नहीं कर पाते. तो इस वजह से हमारी उतनी स्पीड नहीं है, हमारे पास डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं और उतनी एक्यूरेसी नहीं है हमारी वर्किंग की. हमारा जो प्रोसेसिंग है वो बहुत स्लो है. तो इस वजह से हम चाहते हैं कि हमारा काम कंप्यूटर करे जब हमारे पास डेटा ज्यादा होता है. रीजन बीइंग
कंप्यूटर कैन वर्क फास्टर देन अ ब्रेन फंक्शनैलिटी। हमारा जो ब्रेन है उससे कहीं ज्यादा फास्ट काम कर सकता है वो, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे जो भी काम है, जो टास्क है, वो हमारा सिस्टम करे, कंप्यूटर करे। तो जब बात कंप्यूटर की आती है तो हमारे पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि हम उस डेटा को प्रोसेस करने के लिए कोई स्टैटिक सॉफ्टवेयर यूज करें। स्टैटिक सॉफ्टवेयर जैसे एक्सेल है, जैसे पावर बीआई है, जैसे टैबलू है, इस तरीके के सॉफ्टवेयर आप यूज कर सकते हो। पर इन सॉफ्टवेयर की भी लिमिटेशन होती है। लिमिटेशन इन द सेंस कि किसी भी स्टैटिक सॉफ्टवेयर में आप एक तरह की प्रोग्रामिंग करते हैं, प्रोग्रामेबल मशीन सॉफ्टवेयर होते हैं, सो इट कैन वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन इंस्ट्रक्शंस और प्रोग्राम्स ओनली। तो आपके पास अगर नया डेटा आता है, उस डेटा में किसी तरह के नेचर में चेंजेस हैं, तो आपका सॉफ्टवेयर उन्हें डिटेक्ट नहीं कर पाता, उन्हें समझ नहीं पाता है, चेंजेस को नहीं समझ पाता है। इस तरह के चेंजेस, जैसे यूट्यूब है, यूट्यूब के आप यूजर हैं यूट्यूब के, तो आज आप किसी अलग तरह की मूवीज देखते हैं, 2 साल बाद आप और अलग तरीके की मूवीज देखेंगे, 5 साल बाद आपका इंटरेस्ट और चेंज होगा, आप अलग तरह की मूवीज देखेंगे। तो अब यूट्यूब जो है वो आपको जो वीडियो सजेस्ट करता है, नेटफ्लिक्स आपको वीडियो सजेस्ट करता है, या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर है वो आपको वीडियोस या टेक्स्ट या कंटेंट, अमेजन, फ्लिपकार्ट, ये सब आपको प्रोडक्ट सजेस्ट करते हैं। तो किस बेस पे सजेस्ट करते हैं कि आपने क्या सर्च किया, आपने क्या परचेज किया, आपने क्या वीडियोस देखे, उसके बेस पे। अब क्योंकि डे बाय डे आपके नेचर, आपका जो इंटरेस्ट है वो चेंज हो रहा है, आपके नीड और कंसर्न चेंज हो रहे हैं, तो इस बात को कौन समझेगा? इस बात को एक ब्रेन समझ सकता है। डेटा में आ रहे चेंजेस और नेचर में आ रहे चेंजेस को समझने की कैपेबिलिटी ब्रेन की है, ना कि किसी स्टैटिक सॉफ्टवेयर की। तो एक्सेल या पावर बीआई जैसे स्टैटिक सॉफ्टवेयर ये काम नहीं कर सकते, ये काम सिर्फ ब्रेन का है। इसलिए हम उनको स्टैटिक सॉफ्टवेयर कहते हैं। और अगर हमें बड़े डेटा के साथ, बड़े डेटा का मतलब जैसे कि आप देखो यूट्यूब के पास कितना सारा डेटा है, फेसबुक के पास कितना सारा डेटा है, हर रोज कितना सारा डेटा इंस्टाग्राम में अपडेट होता है। तो इतने ज्यादा डेटा को प्रोसेस करने और फिल्टर करने के लिए, और इसमें चेंजेस भी हो रहे हैं, नेचर में चेंजेस हो रहे हैं, जो यूजर है, इस डेटा को चेंज, इसके चेंजेस को समझने के लिए किसी स्टैटिक सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि स्टैटिक सॉफ्टवेयर की कैपेबिलिटी इसको हैंडल नहीं कर सकती, ये बियॉन्ड है उसके। तो हमें एक नए सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें नॉर्मल स्टैटिक सॉफ्टवेयर की कैपेबिलिटी तो हो ही, एक ब्रेन की फंक्शनैलिटी भी उसमें इंटीग्रेट हो। क्योंकि एक ब्रेन की पावर ये है कि वो डेटा के नेचर को, नेचर के चेंजेस को, पैटर्न को समझ सकता है। वो स्टैटिक सॉफ्टवेयर नहीं कर सकता, लेकिन ब्रेन हमारा बड़े डेटा के साथ डील नहीं कर सकता। तो इन दोनों कैपेबिलिटीज को मर्ज करके एक सॉफ्टवेयर बनाने की कोशिश की जाती है, एंड दिस सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड मॉडल। हम मॉडल कहते हैं उसको। तो ये जो मॉडल होता है, अ स्पेशल सॉफ्टवेयर दैट कैन मिमिक द ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन इंटेलिजेंस। हमारा ब्रेन जिस तरीके से काम करता है उसको कॉपी करने की कोशिश करता है, उस तरीके से काम करने की कोशिश करता है। इसलिए ये थोड़ा स्पेशल होता है, इसलिए ये खास है। इसमें फीचर्स ज्यादा है, पॉसिबिलिटीज ज्यादा है, संभावनाएं ज्यादा है इसमें, कि बहुत कुछ कर सकता है, क्योंकि ये डेटा से सीख सकता है। जैसे कि आप कोई चीज बनाते हो, कोई डिवाइस बनाते हो, तो आपने बनाया है, अब आप उसमें इंप्रूवमेंट करोगे, किसी भी तरह के चेंजेस करोगे, इंप्रूवमेंट करोगे, तो आप करोगे। लेकिन मॉडल के साथ ऐसा नहीं है। अगर एक अच्छा मॉडल बन गया है, तो आपने मॉडल बनाया है, अब मॉडल ही मॉडल को बनाएगा। मशीन लर्निंग इसको कहते हैं। अ मशीन कैन लर्न समथिंग फ्रॉम द डेटा, फ्रॉम द गिवन डेटा। आपने जो डेटा दिया है आप मशीन को, वो उस डेटा से रीड करके कुछ नई चीज समझ सकता है, सीख सकता है। लर्निंग कैपेबिलिटी है, जस्ट लाइक अ ह्यूमन बीइंग। जैसे कि हम आप सीख लेते हैं डेटा से, वैसे ही आपका सॉफ्टवेयर सीखने लग जाता है, मॉडल सीखने लग जाता है। और इसी को बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस की पहचान क्या है? ये देखिए कुछ पॉइंट्स है। विजुअल परसेप्शन है, स्पीच रिकॉग्निशन है, डिसीजन मेकिंग है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, रीजनिंग एबिलिटी है। ये सारी चीजें होती हैं हमारे ब्रेन के पास, इसलिए हम उसको इंटेलिजेंट बोलते हैं। और यही फीचर्स कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के अंदर इंटीग्रेट करने की कोशिश की जाती है, तो उसे बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आई थिंक आप ये बात समझ पा रहे होंगे। तो बेसिकली मशीन लर्निंग में क्या है, देखिए एआई के बहुत सारे एप्लीकेशंस आप अभी यूज कर पा रहे हैं, जैसे कि सर्च इंजन यूज करते हैं आप गूगल। तो अब वहां पे देखते हैं कि आप कोई टेक्स्ट टाइप करते हैं, उसे पता चल जाता है, आप लिखोगे डेटा, उससे एसोसिएटेड साइंस वो अपने आप सजेस्ट करेगा, डेटा साइंस अपने आप लिख करके आ जाएगा। ये क्या है? इतने सारे लोगों ने डेटा के साथ साइंस सर्च किया है, तो वो एक्चुअली समझता है कि डेटा के साथ साइंस वर्ड बहुत ज्यादा सर्च किया जाता है, एसोसिएशन को समझता है।
इसलिए वो वहां पे आपको सजेशन देता है। तो इस तरह के बहुत सारे एप्लीकेशंस ऑलमोस्ट हर एक फील्ड में आप देख पा रहे हो, चाहे वो एयरलाइंस हो, चाहे वो लॉजिस्टिक हो, चाहे वो हेल्थ केयर हो, एजुकेशन हो, बिजनेस हो, एंटरटेनमेंट हो, एंटरप्राइज लेवल पे हर जगह पे इसको यूज किया जाता है। आईओटी हो, सब जगह पे यूज किया जाता है। तो इनको हम लोग कहीं ना कहीं यूज कर रहे हैं। देखिए गेम्स आप खेलते हो, स्पैम फिल्टरिंग होती है जीमेल में, ये सारी चीजें। तो इट्स ऑल अबाउट मशीन लर्निंग इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक कैपेबिलिटी है, एक फीचर है जो डेवलप होता है मशीन लर्निंग प्रोसेस से। मशीन लर्निंग का मतलब है मशीन कैन लर्न फ्रॉम द डेटा। अगर मशीन के अंदर लर्निंग कैपेबिलिटी आ जाए, जो डेटा से कैसे सीख सकती है, इसी को बोलते हैं मशीन लर्निंग। तो अब मशीन लर्निंग देखो यहाँ पे, मशीन लर्निंग के तीन मेन आप कह सकते हो कि रूट है या टाइप्स है, कैटेगरी है, जिसमें एक सुपरवाइज लर्निंग आती है, एक अनसुपरवाइज आती है, एक रीइंफोर्समेंट लर्निंग आती है। इन सुपरवाइज लर्निंग दे हैव टू सुपरवाइज द डेटा बिफोर पासिंग दैट डेटा टू द मॉडल। अगर आप कोई मॉडल बनाते हैं, उस मॉडल को जो डेटा दे रहे हैं, जिस डेटा से वो लर्निंग करने वाला है, आप उस डेटा को सुपरवाइज करते हैं। सुपरवाइज करने का मतलब है उसमें क्या एरर है और हमारा मॉडल किस तरीके के डेटा से ट्रेन होगा, वो किस तरीके का काम करेगा, किस तरीके के आउटपुट जनरेट करेगा, ये सारी चीजें हम खुद डेटा में सुपरवाइज करके देते हैं मॉडल, तो उसको सुपरवाइज लर्निंग कहते हैं। एंड अगर हम अपने डेटा को जस्ट पास कर देते हैं सिस्टम में, कोई सुपरविजन नहीं करते हैं, तो कंप्यूटर का जो प्रोग्राम है वो खुद से डेटा में क्लीनिंग करने की कोशिश करेगा, खुद से ही सीखने की कोशिश करेगा, कोई सुपरविजन नहीं है, तो उसको बोलते हैं अनसुपरवाइज लर्निंग, जिसमें क्लस्टरिंग की एल्गोरिदम्स होती हैं। सुपरवाइज लर्निंग में क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन की एल्गोरिदम होती हैं। ये सारी एल्गोरिदम आपको पढ़ने को मिलती हैं। रीइंफोर्समेंट लर्निंग जो होती है, इसमें डिसीजन मेकिंग है। तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग में कंप्यूटर सेल्फ से लर्निंग करता है और सेल्फ से इंप्रूवमेंट भी करता है, जस्ट लाइक ह्यूमन ब्रेन। जैसे कि मान लो आज आप किसी एग्जाम में फेल हो जाते हो, तो आपको पता है कि क्या क्या प्रॉब्लम हुई है, कहाँ हुई है, आप समझने की कोशिश करोगे, समझ जाओगे, और नेक्स्ट टाइम आप अपने रिजल्ट को इंप्रूव करने की कोशिश करोगे। दिस इज कॉल्ड रीइंफोर्समेंट लर्निंग। जो प्रीवियस एक्सपीरियंसेस हैं, उनमें जो फॉल्ट्स थी उनको समझना और उसके हिसाब से खुद को इंप्रूव कर लेना, इंप्रोवाइज करते रहना, दिस इज कॉल्ड रीइंफोर्समेंट लर्निंग, जो हमारे अंदर होती है और वही कंप्यूटर के अंदर लाने की कोशिश की जाती है इन रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तो मशीन लर्निंग टोटली डिपेंड करती है स्टैटिस्टिक्स पे, मैथमेटिक्स पे, स्टैट्स, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री, इस तरीके के टोटल मैथमेटिक्स। मशीन लर्निंग के बैकएंड में टोटल मैथमेटिक्स चलती है, टोटल 100% मैथमेटिक्स, ये मैथमेटिक्स ही है। तो अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड के हैं तो मशीन लर्निंग आपको बहुत अच्छी से समझ में आएगी। और अगर मैथ्स अगर आपको नहीं भी आती, आपका बैकग्राउंड मैथ्स नहीं रहा है, तब भी आप मशीन लर्निंग में आ सकते हैं। मशीन लर्निंग के कोर्स के ड्यूरेशन में आपको स्टैट्स और मैथ्स भी थोड़ी बहुत सिखाई जाती है, जितनी रिक्वायर्ड है, जिससे आपका काम चल जाए। तो अगर आप थोड़ा सा लॉजिकल हैं और आप मेहनत कर सकते हैं, तो आपके मैथ्स बैकग्राउंड में नहीं है तब भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। बट अगर मैथ्स है तो ये प्लस पॉइंट रहेगा आपके लिए, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैंने आपको बताया, अगर कंप्यूटर के पास लर्निंग कैपेबिलिटी आ जाए तो इस कैपेबिलिटी को ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। एंड दीज ऑल थिंग्स आर अंडर डेटा साइंस। डेटा साइंस इज an umbrella term, you can say, in which we can study about artificial intelligence, and artificial intelligence also an umbrella term for the machine learning and deep learning. These are the technologies, machine learning and deep learning, ये technologies हैं in which a computer or machine or software कैन लर्न फ्रॉम द डेटा, डेटा से जो भी डेटा फीड करते उससे लर्न कर सकता है, सीख सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि डेटा सबसे इंपॉर्टेंट है, कि आप क्या डेटा रिसीव कर रहे हो, किस तरीके के डेटा से ट्रेन कर रहे हो, ये सारी चीजें में हम लोग क्लास में डिस्कस करते हैं। दो तरीके का डेटा होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। ऑन द बेसिस ऑफ द कलेक्शन एंड ऑन द बेसिस ऑफ द रिकॉर्डिंग और मैनेजमेंट, वी हैव टू टाइप्स ऑफ डेटा, स्ट्रक्चर डेटा एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। स्ट्रक्चर डेटा वो होता है जो टैबुलर फॉर्म में होता है, और अनस्ट्रक्चर्ड वो होता है जैसे कि फाइल्स है, जैसे कि पीडीएफ फाइल है, जैसे कि वीडियो फाइल है, ये सब आपके अनस्ट्रक्चर्ड डेटा कहलाते हैं। तो डेटा साइंस बेसिकली मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इस डेटा के कॉम्बिनेशन से ही बनता है। मैंने भी आपको बताया, हम डेटा का यूज करके, हम टेक्नोलॉजीज और लैंग्वेज और मैथमेटिक्स का यूज करके कैसे सॉफ्टवेयर बनाने की कोशिश करते हैं जो ह्यूमन ब्रेन की तरह फंक्शनैलिटी रख सकता है, डेटा के नेचर को समझ सकता है। तो ये ग्रिसडीएम एक मॉडल होता है, क्रॉस इंडस्ट्री स्टैंडर्ड प्रोसेस फॉर डेटा माइनिंग, in which we have 6 steps. First step is collection of data and discovery in the data, discovery of knowledge, discovery of insights. तो हमारे पास जो डेटा आया उसमें हो सकता है कुछ नॉइजें, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, स्ट्रक्चर डेटा किसी भी टाइप का है, मिस्टेक्स हो सकती हैं,
एनोमलीज हो सकती हैं, आउटलायर्स हो सकते हैं, डिस्क्रिपेंसीज हो सकती हैं, मिस्टेक हो सकती है, मिसिंग वैल्यूज हो सकती हैं, नल वैल्यूज हो सकती हैं। ये सारी चीजों को हम डिटेक्ट करते हैं, समझते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, और उसके बाद डेटा को प्रिपेयर किया जाता है डेटा प्रिपरेशन के स्टेप में। देन थर्ड स्टेप इज मॉडलिंग, हम मॉडल बनाते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं, जिसके भी हम बात कर रहे थे। मॉडल बनने के बाद मॉडल को बिल्ड किया जाता है, प्लान होने के बाद फिर ऑपरेशंस में उसको एक बार रीवैल्यूएट किया जाता है। इवैल्यूएशन स्टेप आता है जिसमें हम देखते हैं कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर वो एक्यूरेसी बेटर दे रहा है तो फिर हम उसे डिप्लॉय कर देते हैं, है ना, अपने कम्युनिकेशन रिजल्ट्स के साथ उसको समझाते हैं और डिप्लॉय कर देते हैं रियल एनवायरनमेंट में जिसके लिए उसको बनाया गया है। तो ये बेसिक स्टेप्स हैं। देखो मैंने अभी आपको जो बताया, बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, डेटा अंडरस्टैंड करना है, डेटा प्रिपेयर करना है, मॉडल बनाना है, इवेलुएट करना है, अगर कुछ उसमें प्रॉब्लम है तो वापस से अंडरस्टैंडिंग करनी है, फिर डेटा प्रिपेयर करना है, फिर मॉडल बनाना है, एंड इफ एवरीथिंग इज ओके देन यू हैव टू डिप्लॉय द मॉडल, आपको डिप्लॉय करना है उस मॉडल को। ये लाइफ साइकिल है डेटा साइंस के प्रोजेक्ट का। प्रॉब्लम स्टेटमेंट आएगा, डेटा कलेक्ट करो, डेटा को प्रिपेयर करो, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस परफॉर्म करो और मॉडल को बिल्ड कर दो, इवेलुएट करो और उसके बाद उसे डिप्लॉय कर दो, है ना। तो ये लाइफ साइकिल होगा आपके डेटा साइंस का। डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए आपको ये कुछ टेक्नोलॉजीज फॉलो करनी होंगी, स्टडी करनी होंगी, स्किल्स को। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लर्न पाइथन लैंग्वेज, कोर पाइथन, और यू कैन आल्सो लर्न आर लैंग्वेज, मोस्ट प्रोमिनेंट लैंग्वेज है, मोस्ट पॉपुलर इन डेटा साइंस, इन मशीन लर्निंग। वैसे सी प्लस प्लस और जावा से भी प्रोग्रामिंग होती है, बट सबसे ज्यादा प्रोग्रामिंग जो मशीन लर्निंग डेटा साइंस में हो रही है वो पाइथन में हो रही है। तो क्यों हो रही है अभी हम समझेंगे। पाइथन की कुछ लाइब्रेरीज हैं जैसे कि numpy, pandas एंड scikit-learn है। इन लाइब्रेरीज का यूज करके हम बेसिकली डेवलपमेंट करेंगे। इसमें स्टैटिस्टिक्स की रिक्वायरमेंट होगी, डेटा को विजुअलाइज करने के लिए हमारे पास जो लाइब्रेरी है सीबॉर्न, मैटप्लॉटलिब है। मशीन लर्निंग पढ़ेंगे, डीप लर्निंग पढ़ेंगे, और उसके बाद इसमें प्रोजेक्ट आता है। तो ये बेसिकली स्ट्रक्चर आप कह सकते हो, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक लाइफ साइकिल है आपके डेटा साइंस प्रोजेक्ट का, डेटा साइंटिस्ट का, जिसके लिए वो फॉलो करेगा रोड मैप को। तो वो ये है, ये सारी टेक्नोलॉजीज लर्न करनी है। इसके बाद try to understand that why Python is important in data science and machine learning also. Python is very simple language. You can compare with other languages like Java and C++. Then, if you're comparing with other languages, Python is simplest language and also well-featured language. बहुत सारे features हैं, बहुत अच्छी language है, बड़ी language है, बहुत ज्यादा बड़ी लाइब्रेरी है इसके पास। पाइथन अपनी लाइब्रेरीज के लिए जानी जाती लैंग्वेज है, बहुत ज्यादा पॉपुलर है, बहुत सारी लाइब्रेरीज होने की वजह से स्ट्रॉन्ग है। इसी वजह से एआई में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओपन सोर्स लैंग्वेज है। ओपन सोर्स होने का मतलब है इसका सोर्स कोड पब्लिकली अवेलेबल है, तो आप देख सकते हो कि कोई भी यूजर या विजिटर इसके सोर्स कोड को देख सकता है, और इसमें सजेशंस भी प्रोवाइड करते हैं लोग अपने अपने। तो आप इस पे कंट्रीब्यूट कर सकते हो अगर कोई नई चीज बनाते हो। मल्टी पैराडाइम है। मल्टी पैराडाइम का मतलब इसमें प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी होती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी होती है, ऑब्जेक्ट बेस्ड भी होती है, फंक्शनल भी होती है। All type of approaches can be used in Python language. That's why we can say Python is a multi-paradigm language. And also we can develop all type of softwares. It means Python has a different type of roles in different fields, like in web development, in software development, in machine learning, in app development, in Android development. Each and every field is using Python somehow. That's why we can say Python is a general purpose language. हर फील्ड में इसको यूज किया जाता है। And also Python is a platform independent or portable language. That means कि आप पाइथन में कोई सॉफ्टवेयर बनाते हो, एक बार सॉफ्टवेयर बनाया आपने, राइट वंस रन एनीवेयर, यू कैन रन दैट सॉफ्टवेयर ऑन एनी प्लेटफॉर्म। दैट्स व्हाई इट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। आपने एक बार सॉफ्टवेयर बना लिया है, फिर उसे चाहे विंडोज में रन करो, चाहे लिनक्स पे रन करो, चाहे यूनिक्स पे रन करो, चल जाएगा। बस इसकी वर्चुअल मशीन की जरूरत होती है, पाइथन वर्चुअल मशीन की जरूरत होती है। और ये इंटरप्रेटर यूज करती है, इसलिए इसको इंटरप्रेटेड लैंग्वेज भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसके कुछ मैं आपको यहाँ पे सो गाइस, ये कुछ बेसिक फीचर्स हमने समझे पाइथन के और डेटा साइंस के बारे में समझा। नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर, फॉर दिस वीडियो, फॉर दिस वर्कशॉप। एंड इफ यू हैव एनी डाउट और क्वेश्चन, then you can contact, like, share and subscribe the channel, and contact for us for subscription for any type of queries related to data analytics, data science. Thanks for watching.